पढ़ा था. Now again I will share the textbook with you all. Just a second, beta. Yesterday for human dentition, the part which was been remaining, and as I've told you, I will be explaining you once again. 170 page number. Okay. So now you all can see this page. No. Now about the tooth, which I've told you at the last part of the lecture, I will just again explain you once again. So you can see that the tooth has two regions. The one part of the tooth which is embedded inside the jawbone, ये jawbone है जो jawbone के अंदर है उसे हम root कहते हैं. और जो ऊपर visible part है teeth का, the visible portion of the teeth is called as a crown. The visible portion of the teeth is called as a crown. क्राउन के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है, क्राउन के ऊपर एक हार्ड सब्सटेंस का कवरिंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एनामल कहते हैं, एनामल. ये एनामल किस चीज से बना है? सो लेट अस सी दैट in the textbook it has been given. The enamel is made up of calcium phosphate and the calcium carbonate, calcium phosphate and the calcium carbonate. Okay, the body of the tooth is called as dentine. The body of the tooth is called as dentine, which is calcified connective tissue. Calcified connective tissue मतलब जो कैल्शियम से बना हुआ connective tissue है. Okay, then the body of the tooth that is dentine is again made up of regions. उसके अंदर एक cavity present है जिसे हम pulp कहते हैं, उसके अंदर pulp भरा हुआ है. और फिर nerve supply और blood supply present है. ठीक है, so all this part we have discussed. Next, the cementum. Please do underline the cementum. The dentine of the root of the tooth is covered by cementum, a bone-like substance that attach the root to the surrounding socket in the gum. So this can be asked as a 1-mark question. Cementum. What is cementum? A bone-like substance that attach the root to the surrounding socket in the gum. Then we have seen about the pharynx. We have discussed about the glottis. Then we have discussed about the epiglottis. We have seen the function of epiglottis. What is the function? It will prevent the entry of food into the trachea during swallowing. Swallowing का भी हमने दूसरा नाम देखा था. That is deglutition. We have seen deglutition also. ठीक है. Oropharynx opens into the esophagus through an opening again called as a gullet. Please do underline gullet. हमारा जो ओरोफैरिंग्स है, फैरिंग्स में दो हिस्से हैं ना, ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंगोफैरिंग्स. लैरिंगोफैरिंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ओपन होता है और ओरोफैरिंग्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ओपन होता है. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ओपन होता है हमारे ईसोफेगस में, वो ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, गलेट कहते हैं. अंडरलाइन गलेट. फिर हमने ईसोफेगस पढ़ा था. ईसोफेगस बताया हमने कि अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर का ट्यूब है जो स्टमक में ओपन होता है. यस, ईसोफेगस के अंदर दो टाइप के मसल्स देखे थे हमने, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स, जो कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराते हैं, जिसे हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं. द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज पेरिस्टालिसिस. Rhythmic contraction and relaxation is called as peristalsis. Noted? Now we are going to learn about the next topic, that is the stomach now. So let us discuss about the next part.
That is a stomach. Now, stomach is roughly a J-shape organ. It's roughly a J-shape organ. उसके 3 हिस्से हैं, आप देख सकते हो. अब ऊपर वाला हिस्से को, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, सो प्लीज इसको करेक्शन करना है आपको. ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? कार्डियक. और ये पूरा बीच के हिस्से को हम कहते हैं फंडस. एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक. सो अपर रीजन इज कार्डियक, बीच वाला हिस्सा इज फंडस. Again, I am repeating, the uppermost region is cardiac, the middle portion is fundus, and the lowermost part of the stomach is called as a pyloric. Both cardiac and pyloric region are having a sphincter muscles. Sphincter muscle will help in opening and closing. Opening and closing में मदद करता है. तो आप देख सकते हो जैसे ही फूड इसोफेगस से स्टमक में आएगा तो यहाँ का जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाएगा और फिर फूड अंदर आएगा. सिमिलरली फूड के अंदर सारा डाइजेशन होने के बाद जब पूरा डाइजेशन हो जाएगा, हमारा फूड 4 से 5 घंटे हमारे स्टमक में रहता है. 4 to 5 आवर्स हमारे स्टमक में हमारा फूड रहता है, वहां पे डाइजेशन होता है. तो जब पूरा डाइजेशन हो जाएगा स्टमक में का, तब जाकर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा और फिर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. अंडरस्टूड? ठीक है, तो 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर. हाँ, जैसे ही फूड इसके अंदर आ जाएगा ये पाइलोरिक भी बंद हो जाता है, कार्डियक भी बंद हो जाता है. पाइलोरिक कब खुलेगा? जब फूड का डाइजेशन स्टमक में हो जाएगा तब. अंडरस्टूड? यस Yes, ma'am. आप यहाँ पे स्टमक के इंटरनल वॉल में देख सकते हो. देखो, इनर वॉल ऑफ द स्टमक हैज लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड्स. आप देख सकते हो इसमें ऊपर नीचे से फोल्ड्स नजर आ रहे हैं. प्लेन सरफेस नहीं है, ऊपर नीचे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रुएग. रुएग कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट एज अ रुएग. अंडरस्टूड? सो द लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्टमक आर कॉल्ड एज अ रुएग. प्लीज नोट डाउन. So all of you note down the 3 regions of the stomach: cardiac, fundus, pyloric. कार्डियक में कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक में पाइलोरिक स्फिंक्टर. और क्या बताया मैंने? स्टमक के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स है जिसे हम क्या कहते हैं? रुएग. नोटेड ऑल ऑफ यू दिस मच पॉइंट? So now let us see with the textbook also. So J shape है, 20 to 25 centimeter long है. Upper region is cardiac, lower region is pyloric. You can see in over here also. So cardiac is the first part, which is having sphincter, which will prevent the backflow. Backflow को medical term में regurgitation भी कहते हैं. So please underline in your textbook. कार्डियक स्फिंक्टर, कोई भी स्फिंक्टर जो है वो क्या काम करता है? बैक फ्लो होने से बचाता है, उल्टा फ्लो होने से बचाता है. तो बैक फ्लो को मेडिकल टर्म में बोला जाता है रिगर्जिटेशन. फिर फंडस आपने देखा डोम शेप का है, बीच का हिस्सा है, बॉडी सेंट्रल पार्ट है, और फिर पाइलोरिक रीजन इज द लास्ट पार्ट. अगेन उसमें स्फिंक्टर होता है कॉल्ड एज अ पाइलोरिक स्फिंक्टर. अगेन इस स्फिंक्टर का भी वही काम है, रिगर्जिटेशन से बचाना. स्टमक के अंदर टेम्पररी स्टोर होता है फूड. कितने घंटे? 4 to 5 आवर्स हमारे स्टमक में फूड स्टोर होता है. और स्टमक में फीलिंग ऑफ सैटिटी होती है. सैटिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस. आप बोलते हो ना पेट भर गया, कितना अगर ज्यादा खा लिया तो पेट भर गया. तो जब स्टमक में सैटिटी की फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस की होती है, तो स्टमक के अंदर फूड का चर्निंग भी होता है और गैस्ट्रिक जूस भी उसमें मिक्स होता है. फूड का चर्निंग होगा. वी विल बी लर्निंग द टीएस ऑफ स्टमक. दैट टाइम वी विल बी लर्निंग.
कि स्टमक के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के मसल्स होते हैं जो कि फूड का चर्निंग करते हैं, और फिर फूड का मिक्सिंग होता है गैस्ट्रिक जूस के साथ, जिससे कि डाइजेशन पूरा होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अंडरस्टूड स्टमक वाला रीजन ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? Any doubt till here? All of you have opened your textbook now? Yes, ma'am. Yes. चलो, now let us move on to the next part, that is a small intestine now. मैं आपको TS इसका बाद में बताऊंगी. I will again start with the first normal part and then next part. Small intestine is actually a long intestine. क्यों इसको long intestine बोलते हैं? क्योंकि कम से कम ये 6 to 7 मीटर बड़ा है, 6 to 7 मीटर बड़ा है, लंबा है. इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर बहुत छोटा है. यस, इसका डायमीटर कितना है? जस्ट 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर है, इसीलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. बट स्मॉल इंटेस्टाइन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ लॉन्ग इंटेस्टाइन, क्योंकि लंबाई में बड़ा है. इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल. हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा रीजन है. इसके 3 हिस्से हैं, आप देख सकते हो. स्टमक में से जो बाहर आ रहा है, जो सी शेप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड एज अ डियोडेनम. फिर एक पूरा कॉइल्ड पार्ट इज कॉल्ड एज द जेजुनम, एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज इलियम. सो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हिस्से हैं? हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स. 3 parts. Duodenum, which is C shape, which is coming out from the stomach. Jejunum, ileum. Duodenum, jejunum, ileum. इन तीनों में से जेजुनम बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इतना इंपॉर्टेंस है डियोडेनम को? क्योंकि डियोडेनम के ऊपर वाले साइड में लिवर है, तो वो लिवर अपना सिक्रीशन डियोडेनम में डालता है, और डियोडेनम के इस साइड, राइट साइड में पैनक्रिया होता है, वो पैनक्रिया भी अपना सिक्रीशन डियोडेनम के अंदर डालता है. तो क्योंकि लिवर भी अपना सिक्रीशन डियोडेनम में डाल रहा है, पैनक्रिया भी अपना सिक्रीशन डियोडेनम में डाल रहा है, तो डियोडेनम के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है फूड का. इसीलिए डियोडेनम को थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर जो बचा कुचा डाइजेशन है वो जेजुनम में होगा और फिर इलियम में होगा. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का ऑलमोस्ट सारा डाइजेशन हो जाता है. Now, one more important point which I wanted to say over here is, as you can see that it is highly coiled, और इतना लंबा है, पूरी तरह से coiled है. तो आपने कभी सोचा कि कभी ये coil खुल भी तो सकता है? अगर आप कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये coil खुल भी तो सकता है. ऐसा अगर सिर्फ हमने कोई चीज को रख दिया तो वो हिल सकता है, खुल सकता है. तो इसका भी ध्यान दिया गया है. The coils are held together by means of a connective tissue. ये जितने भी coils आपको नजर आ रहे हैं, they all are held together with the help of a connective tissue, and that connective tissue is called as a mesenteries. It is called as what? It is called as a mesenteries. So I will again go back to the textbook. So you can see over here for the small intestine, it is 6 meter, 2.5 broadness है. Underline mesenteries. All of you underline mesenteries. So coils are held together by the mesenteries. 3 part है, duodenum है, jejunum, and then last में ileum. थोड़ा धीरे धीरे डायमीटर बढ़ते जाएगा जैसे जैसे हम इलियम की तरफ बढ़ेंगे तो. Understood this also? Again, in ileum, the very important point is ileocecal junction. Ileocecum junction. अब इलियम तक क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है. इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होगा. तो जहां पे इलियम खत्म हो रहा है और जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, वहां पे जो जंक्शन है उसे हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन. प्लीज डू अंडरलाइन इलियोसिकल जंक्शन. जंक्शन का मतलब मीटिंग पॉइंट.
ठीक है, तो कौन कौन से दो चीज का मीटिंग पॉइंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, जो जंक्शन है, उसे हम कहेंगे इलियोसिकल जंक्शन। एनी डाउट टिल हियर? यस और नो? No, miss. चलो नेक्स्ट लेट अस कम टू द लार्ज इंटेस्टाइन. I hope all of you are noting down also. So large intestine लंबाई में छोटा है पर ब्रॉडनेस में बड़ा है, इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. कितना बड़ा है? जस्ट 1.5 मीटर लॉन्ग है, बट उसका डायमीटर काफी मोटा है, आप देख सकते हो. इसके भी 3 हिस्से हैं, सीकम, कोलॉन और रेक्टम. सीकम वो रीजन है जहाँ पे इलियम स्टॉप हुआ था, तो इलियम और सीकम को हमने मार्क किया था इलियोसिकल जंक्शन. अच्छा, अब सीकम में आप ध्यान से देखो बेटा, आप देख सकते हो कि सीकम रीजन में आपको एक वर्म के जैसा वर्मी फॉर्म स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. वर्मी फॉर्म का मतलब है वर्म के जैसा स्ट्रक्चर, और ये वर्मी फॉर्म स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अपेंडिक्स. हैव यू हर्ड अबाउट अपेंडिक्स? Yes. अपेंडिक्स अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. हमारे बॉडी का ये वेस्टिजियल ऑर्गन है. वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है? ऐसा ऑर्गन जिसका अभी कुछ काम नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं. ठीक है, पर इट शोज द इवोल्यूशन कि वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द हर्बीवरस एनिमल. जो हर्बीवरस एनिमल होते हैं ना, हर्बीवरस मतलब क्या होते हैं? जो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स होते हैं उसे हर्बीवरस कहते हैं. तो जो हर्बीवरस एनिमल होते हैं उनके अंदर ये अपेंडिक्स फंक्शनल है. कैसे फंक्शनल है? दे आर दिस अपेंडिक्स आर सिक्रीटिंग दिस सेल्यूलेज नाम का एंजाइम. आई एम रिपीटिंग, appendix is secreting cellulase enzyme which helps in the digestion of cellulose. अगर हमारे में भी ये फंक्शनल होता तो हम भी सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर पाते. ठीक है, पर हमारे में फंक्शनल नहीं है. अभी आप मुझे बोलोगे कि मैम सेल्यूलोज कौन सी चीजें होती हैं? तो जैसे हमारा पेपर है वो सेल्यूलोज से बना हुआ है. अंडरस्टूड? प्लांट का जो कोई भी ट्री का जो अपर मोस्ट रीजन होता है उसे हम सेल्यूलोज बोलते हैं. जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है. तो ये फंक्शनल किस में है? हर्बीवरस एनिमल में है, टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ अ पॉलीसेकेराइड. उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम है सेल्यूलेज. ठीक है, पर हमारे बॉडी में ये वेस्टिजियल है, मतलब कोई काम का नहीं है, बट ये इवोल्यूशन बताता है कि वी ऑल आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द हर्बीवरस एनिमल. फिर हम बात करेंगे कोलॉन की. ये पूरा जो लंबा ट्यूब आपको दिख रहा है, यू शेप का जो ट्यूब दिख रहा है, ये पूरा कोलॉन है. तो हम इस कोलॉन को 3 हिस्से में हमने डिवाइड किया. जो कोलॉन ऊपर की तरफ जा रहा है उसे हम कहेंगे असेंडिंग कोलॉन. जो ऐसे ट्रांसवर्स जा रहा है उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स कोलॉन, और जो नीचे की तरफ आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कोलॉन. सो असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन. ठीक है. अच्छा, अब ये कोलॉन कहाँ पर ओपन हो रहा है? डिसेंडिंग कोलॉन पेल्विक कोलॉन में ओपन हो रहा है. और पेल्विक कोलॉन कहाँ पे ओपन हो रहा है? रेक्टम में. रेक्टम क्या है? एक पाउच के जैसा स्ट्रक्चर है जहां पे टेम्पररी फीसेस स्टोर होता है. फीसेस मतलब वेस्ट प्रोडक्ट. और फिर रेक्टम से एनस में जाएगा और एनस से बॉडी के बाहर जाएगा. I hope this much is also clear. Anyone is having any doubt, you can ask me. I will wait. You just check whether you have understood each and everything. Please let me know yes or no.
Yes or no? No, teacher. No doubt. Chalo, again let us see with the textbook also. So large intestine का column देखो एक बार. Have we covered all the points? One point is there that I will discuss just now. So large intestine is the small intestine. Short intestine, sorry. Large intestine is a short intestine. But उसका diameter wider है, इसलिए हम इसे large intestine कहते हैं. So cecum है, which is a blind sac. Blind sac का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें opening नहीं है, उसे हम blind sac कहते हैं. ठीक है. और कहाँ पर present है? At the junction of ileum and colon. Now this point I want to elaborate. सीकम के अंदर, ये जो सीकम रीजन अभी मैंने आपको फोटो दिखाया, सीकम के अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं. सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है. सिम्बायोटिक एक ऐसा एसोसिएशन, प्लीज नोट डाउन ना, ऑल दिस टर्म्स जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ ये लेसन के लिए नहीं है, बहुत सारे लेसन के लिए हेल्पफुल है. So, symbiotic association का मतलब क्या होता है? ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है. जैसे कि हमारे सीकम में कुछ अच्छे वाले बैक्टीरियाज रहते हैं. ये अच्छे वाले बैक्टीरियाज हमारे फूड को और थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं, जो बचा कुचा फूड आया है, और उनको रहने के लिए जगह मिलता है. Yes. So because of this, this association is called as a symbiotic association. Understood? Yes, yes, teacher. Understood. Hello. Yes, beta. Understood ना? Yes, teacher. Okay, beta. So appendix अभी मैंने आपको explain किया था. It is functional in herbivorous. मैंने अभी आपको बताया cellulose के digestion के लिए. Then colon also, rectum also. यहाँ पे temporary store होता है undigested waste material which is called as a feces. And then the anus. एनस में भी क्या होता है प्रेजेंट? एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. एनल स्फिंक्टर. ठीक है. एनल स्फिंक्टर जो है वो वॉलेंट्री कंट्रोल पे है. वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल पे है. ठीक है. सो and it expels the fecal matter by the process which is called as ejaculation or the defecation. ये सारे वर्ड्स आप याद रखो, ejaculation और defecation. ठीक है. Now the next topic which we are going to learn is the histology. Yes beta. Defecation मतलब? Removal of waste product. ejaculation को ही defecation बोलते हैं. ठीक है. ejaculation को ही defecation कहते हैं. Removal of waste product through anus is called as the ejaculation or the defecation. Understood? Yes, ma'am. Okay. Now the next topic which we अभी देखो हमने सिर्फ ऊपर के बाहर का स्ट्रक्चर पढ़ा है. अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अंदर से हिस्टोलॉजी पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन. हिस्टोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू. स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज अ हिस्टोलॉजी. तो जब हम ऑर्गन को कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं उसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी. तो हम किसको कट करके देख रहे हैं? हमने स्टमक को कट किया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को कट किया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. हमने लार्ज इंटेस्टाइन को कट किया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. तो ये जो स्टडी होता है इसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं. तो फिर लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर हमने स्टमक का कट किया, इंटेस्टाइन को कट किया तो कुछ अलग है कि सेम दिखता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. सो सी ये इंटेस्टाइन का टीएस है, हिस्टोलॉजी. ठीक है. आप देख सकते हो ये ऐसा गोल इंटेस्टाइन है जिसको हमने कट किया.
तो कट करने के बाद जब उसको हमने जूम किया, आप एरो मार्क को फॉलो करो बेटा और देखो, आप देख सकते हो कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगी। यस, नाउ सो कोई भी इंटेस्टाइन हो या स्टमक हो, प्लीज नोट डाउन, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज कंफ्यूज मत होना, नहीं समझ रहे लिख लो, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो। फिर वो स्टमक हो या इंटेस्टाइन हो, दोनों के अंदर 4 लेयर्स होते हैं। प्लीज नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे हर बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। Stomach and intestine both are having 4 layers. 4 layers. The outermost layer in both the cases is called as serosa. सबसे बाहर का लेयर, फिर वो स्टमक हो या इंटेस्टाइन हो, उसे हम सेरोसा कहते हैं। सेरोसा के अंदर का लेयर है मस्कुलरिस या मसल लेयर। मस्कुलरिस बोलो या मसल लेयर, आप देख सकते हो ये लाइट पिंक में थोड़ा डार्क कलर का दिख रहा है मसल लेयर। फिर और उसके अंदर आएंगे तो है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर है म्यूकोसा। समझा? कौन से 4 लेयर है बताओ मुझे? सबसे बाहर का लेयर, सबसे बाहर का लेयर सेरोसा। सेरोसा। के अंदर का लेयर मसल मसल लेयर्स। मसल लेयर। मसल लेयर को आप मस्कुलरिस भी कह सकते हो। ओके, उसके अंदर का लेयर सब म्यूकोसा सब मुकोसा। सब मुकोसा। सबसे अंदर लेयर म्यूकोसा मुकोसा। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, गुड, आई एम वेरी हैप्पी, ऑल आर रेस्पॉन्डिंग वेरी नाइसली, वेरी गुड। अच्छा, अब फिर से ध्यान से सुनो, सेरोसा, मसल लेयर, सब म्यूकोसा, ये जो तीनों लेयर हैं, ये जो तीनों लेयर हैं, वो स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों में सेम है। ठीक है, ऊपर के जो 3 लेयर्स हैं, सेरोसा, मसल लेयर, सब म्यूकोसा, ये जो ऊपर के 3 लेयर है ना, वो स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों में सेम है। तो फर्क कहाँ पर है? कैसे हमें पता चलेगा कि ये इंटेस्टाइन का है या स्टमक का है? बाय लुकिंग एट द म्यूकोसा लेयर। अंडरस्टूड? सो फर्क म्यूकोसा के लेयर में होता है। स्टमक का म्यूकोसा अलग दिखता है, इंटेस्टाइन का म्यूकोसा अलग दिखता है। तो वो अलग क्या दिखता है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। पहले वो अलग में क्या है वो पढ़ने के पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि सेरोसा किस चीज से बना है, मसल किस चीज से बना है, और सब म्यूकोसा किस चीज से बना है। So let us understand that. Again, I will share back the textbook so that you can understand. Okay. So serosa, पहले हम serosa देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सेक्शन है, बाहर वाला रेड कलर का जो मार्किंग है, that is a serosa. So what is important, all of you underline, it is the outermost layer, सबसे बाहर का लेयर है। दोनों के अंदर, स्टमक में भी इंटेस्टाइन में भी, दोनों में भी ये बाहर का लेयर है। किस चीज से बना है? वेरी इंपॉर्टेंट, मेड अप ऑफ स्क्वैमोस एपिथेलियम। स्क्वैमोस एपिथेलियम एक टाइप का एपिथेलियम है। आप 11th स्टैंडर्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू पढ़ोगे इन द लेसन एनिमल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू इज अ टाइप ऑफ अ टिश्यू, उसमें भी सेरोसा इज अ थिनेस्ट टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। सो ये किस चीज से बना है? स्क्वैमोस एपिथेलियम से बना है। क्योंकि एक बहुत ही पतले स्क्वैमोस एपिथेलियम से बना है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं मीजोथीलियम। एक पतले लेयर ऑफ स्क्वैमोस एपिथेलियम से बना है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मीजोथीलियम। और सेरोसा का जो बाहर अंदर वाला हिस्सा है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना है। सो क्या पढ़ा आपने सेरोसा के बारे में? सेरोसा is the outermost layer both in stomach and the intestine. फिर आपने पढ़ा कि सेरोसा किस चीज से बना है? It is formed of squamous epithelium called as the mesothelium. और उसके अंदर वाला हिस्सा किस चीज से बना है? कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ठीक है, फिर देखो अंदर वाले लेयर में चलते हैं। अंदर वाले लेयर में आप देख सकते हो, दिस इज द मसल लेयर। देखो एक मोटा सा लेयर दिख रहा है सबको, दिस इज कॉल्ड एज अ मसल लेयर।
अब आप मसल लेयर में आसानी से देख पा रहे हो बेटा, दो मसल्स लिखे गए हैं, लॉन्जिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल। देखो दोनों अलग अलग कलर से किए गए हैं, लॉन्जिट्यूडनल मसल एंड द सर्कुलर मसल। तो स्टमक के अंदर कौन सा मसल होता है? तो स्मूथ मसल होता है। प्लीज डू अंडरस्टैंड, स्टमक के अंदर कौन सा मसल होता है? स्मूथ मसल होता है। ठीक है, अगेन आप एनिमल टिश्यू में ये पढ़ोगे, स्मूथ मसल एक ऐसा मसल है जो कि इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब है उसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको हम इनवॉलेंट्री बोलते हैं। सो इसका मसल लेयर किस चीज से बना है? स्मूथ मसल से बना है। देन उसके अंदर भी 3 लेयर्स हैं, लॉन्जिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, ऑब्लिक मसल। लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक, ये जो लेयर है, तीनों लेयर स्टमक में कुछ ज्यादा मोटा है और इंटेस्टाइन में थोड़ा पतला है। और क्या फर्क है? इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्लिक मसल नहीं होता। मतलब व्हाट यू हैव अंडरस्टूड कि मसल के अंदर 3 लेयर्स हैं, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक, और ये तीनों मोटे हैं, वाइडर हैं। और इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ 2 ही लेयर है, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर, ऑब्लिक नहीं है, इसलिए वो पतला है। अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब इसका मसल का काम क्या है? जैसे अभी आपने देखा कि इट्स अ टाइप ऑफ अ स्मूथ मसल, तो आपको पता है कि स्टमक के अंदर भी पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो ये किसके वजह से हो पाता है? मसल्स के कारण हो पाता है। नेक्स्ट लेयर आता है सब म्यूकोसा का। सब म्यूकोसा किस चीज से बना है? इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हमें ब्लड वेसल्स देखने के लिए मिलता है, लिम्फ वेसल्स देखने के लिए मिलता है, नर्व सप्लाई देखने के लिए मिलता है, अलग अलग ग्लैंड्स देखने के लिए मिलता है इस रीजन में। ठीक है, तो सब म्यूकोसा में आपको क्या याद रखना है कि वो कनेक्टिव टिश्यू से बना है, और यहाँ पे हमें ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फ सप्लाई देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट वाले लेयर पे, दैट इज द म्यूकोसा लेयर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि म्यूकोसा के ही अंदर फर्क होता है, म्यूकोसा इज हैविंग द डिफरेंस। सो म्यूकोसा is the innermost layer. Here we can see the different types of goblet cells. Goblet cells, जहां कहीं पे भी goblet cells होंगे, please note down all of you. अभी आपको बहुत सारे सिस्टम्स पढ़ने हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, सब चीजें, पूरा ह्यूमन बॉडी पढ़ना है डिटेल में। तो हर जगह ये सारे टर्म्स आएंगे, म्यूकस म्यूकस म्यूकस, बहुत सारे जगह आएंगे, क्योंकि म्यूकस जो है वो हमारे ऑलमोस्ट हर एक सिस्टम में प्रेजेंट है। तो म्यूकस को बनाता कौन है? तो म्यूकस को बनाते हैं गॉबलेट सेल्स। ठीक है, तो हमारे म्यूकोसा लेयर में गॉबलेट सेल्स हैं जो कि म्यूकस बनाते हैं। अब म्यूकस क्या होता है बेटा? स्टिकी सब्सटेंस को हम म्यूकस बोलते हैं। जैसे अभी आपको सर्दी खांसी हो गई तो ज्यादा म्यूकस बनने लगता है, फिर आप उससे बात नहीं कर पाते हो, है ना, बोल नहीं पाते हो, तो फिर आपको बार बार स्पिटिंग करना पड़ता है उस म्यूकस को। तो म्यूकस का मतलब आपको समझ में आया बेटा? स्टिकी सब्सटेंस जो लुब्रिकेशन का काम करते हैं, स्मूथनिंग का, लुब्रिकेशन मतलब स्मूथनिंग का काम करते हैं। ठीक है, सो हमारे स्टमक के अंदर फोल्ड्स है, अभी हमने देखा उसको रूएज बोलते हैं। और इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में क्या फर्क है? सो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा के अंदर हमें विलाइज देखने के लिए मिलते हैं। स्टमक में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? स्टमक में, यस टेल मी। यस, व्हाट इट इज? रुगेस देखने के लिए मिलता है। और व्हाट आर रुगेस? दे आर द इरेगुलर फोल्ड्स। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें फिंगर लाइक फोल्ड्स देखने के लिए मिलता है, जैसे हम विलाय कहते हैं। जब कोई चीज फिंगर लाइक रहेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? विलाय कहेंगे, विलाय। और विलाय के अंदर होता है माइक्रोविलाय। मैं अब इसका आपको फोटोज दिखाती हूँ।
तो विलाय के अंदर होता है माइक्रोविलाय। विलाय का मतलब ही होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और जब विलाय के अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो उसे हम कहेंगे माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय का काम क्या है? दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा डाइजेशन हो पाता है, पूरा डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, तो ये माइक्रोविलाय क्या करेंगे? दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और हमें इंटेस्टाइन में क्या देखने के लिए मिलता है? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन देखने के लिए मिलता है। ये सब अभी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, और साथ में हमें इंटेस्टिनल ग्लैंड्स देखने के लिए मिलता है। Let me show you with the diagram, with the photo, then things will be much more clear to you all. So ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, आप देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखो ये फिंगर के जैसा प्रोजेक्शंस आपको दिख रहा है बेटा, ये म्यूकोसा के अंदर फिंगर के जैसा प्रोजेक्शंस आप सबको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? विलाय कहते हैं, विलाय। ठीक है, और वे विलाय के अंदर भी छोटे छोटे माइक्रोविलायज होते हैं। तो लेट अस सी द माइक्रोविलाय। लेट मी शो यू द नेक्स्ट फिगर, वेट। देखो, तो ये सब विलाय है, बहुत सारे विलाय, तो हमने यहाँ पे एक विलाय देखा, तो विलाय के अंदर देख सकते हो आप छोटे 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 क्या है? माइक्रोविलायज प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो विलायज है जहां पर नीचे जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो एक पिट बना रहा है, पिट, और इस पिट को हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। क्या कहते हैं? इस पिट को हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। वेट, आई विल शो यू द नेक्स्ट वन। यस, this particular region is called as a crypt of Libercun, और यहाँ पे सारे intestinal glands present हैं। और एक distinguishing point है जो small intestine और stomach में फर्क है, that is about the lacteals. What are lacteals? Lacteals are the digestion of fat. जब फैट का डाइजेशन होता है तो वो एक मिल्की वाइट अपीयरेंस दिखता है, and that milky white appearance is seen in the small intestine which is called as a lacteals. तो फिर से मैं आपको सारी चीजें रिपीट करूंगी। Stomach and intestine both are having the 4 layer. Please check whether you have written the same all the points correctly and nicely. The outermost is serosa in both the cases. Next layer is muscular layer in both the cases. But in stomach there are 3 layers, in intestine there are 2 layers. In stomach there are 3 layers as circular, longitudinal and oblique, and therefore it is much more wider. But in case of intestine, there are only 2 layers, that is the longitudinal and circular. Then and again, when we go inside, submucosa layer. The submucosa both in stomach and intestine have blood supply, nerve supply, lymph supply. Then lastly, when we go to the mucosa layer, in the stomach, we can see the irregular folds or a longitudinal folds, which is called as a what? Rueg. And in intestine, we can see the finger-like projections called as the villi. In the villi, we can see microvilli. Yes, and then we can see crypt of Libercun. We can also see lacteals in case of the small intestine TS. TS matlab transverse section. Understood this much, all of you? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Now next, which I wanted to show you is this. Is the valve or a opening. Ileocecal valve. This is the ileocecal valve. Next. In some herbivorous, in large intestine की हम बात कर रहे हैं. Some this I have discussed. Okay, anus का भी anal sphincter I have discussed. Yes. Just go through these points. All of you just go through जो अभी मैंने आपको explain किया. There's the same thing is there. Just go through. Any doubt, please ask me.
Seen all of you? चलो, tell me the question के answers. Let me check your IQ. अभी जिसका नाम मैं बोलूंगी, they will on the mic and they will answer the questions. आदित्य कोनार. Aditya Konar. Yes, miss. Tell me the answer for the first question which has been displayed. Yes. It's option C. Correct combination क्या आएगा? Yes, cecum, colon and the rectum, which is a part of the large intestine. Very good, बच्चा. Next is Abhishek. Abhishek. Abhishek, on your mic. Abhishek, unmute yourself. Not responding. Piyush Gupta. Piyush Gupta. Payal. मैं सारे बच्चों का नाम नोट डाउन कर रही हूँ और सर को बताने वाली हूँ. जो लोग रेस्पॉन्ड नहीं करके रह के भी आप लोग माइक ऑन करके, इतना आपको ये नहीं हो रहा है कि आप माइक ऑन करके रेस्पॉन्ड तो भी करो यस एंड नो का. आई एम नोटिंग डाउन दिस नेम. डोंट जस्ट थिंक कि मैं सिर्फ नाम कॉल आउट कर रही हूँ. हेलो हेलो. हाँ यस बेटा. ओमकार बोलो. टीचर इसका ऑप्शन सी होगा. हाँ बेटा मैं माइक्रोवेव. हाँ बच्चा. वेरी गुड बेटा. बराबर है ना? Longitudinal folds found in the inner wall of the stomach. Stomach क्या होगा? ओमकार माइक ऑन करो बच्चा. हेलो. हाँ बेटा. व्हाट शुड बी द आंसर? माइक्रोवेव ऑप्शन सी. नो बेटा. स्टमक में पूछा है ना. स्टमक में पूछा है. Can I answer? सो क्या आएगा आंसर? चड्डी रुगे. रुगेज आएगा. रुगेज. ओमकार समझा बेटा रुगेज क्यों है? हाँ. स्टमक में रुगेज है. अगर यहाँ पे स्टमक के जगह पे इंटेस्टाइन रहता तो आंसर क्या होता? विलाय या फिर माइक्रोविलाय भी रहता तो भी चल जाता. ओके. बट यहाँ पे स्टमक है इसलिए रुगे है आंसर. ठीक है. नेक्स्ट आर्यन. आर्यन माइक ऑन करो. आर्यन. Yes, miss. टेल मी द आंसर फॉर दिस. मैम मुझे पता है आंसर. मैं दूं क्या? एक मिस मिनट. माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है. क्या आर्यन? एक मिनट. हाँ पायल 2 मिनट. हाँ बच्चा. अगर इसको नहीं आएगा तो फिर आप देना. हाँ बेटा. The codon means option A, teeth are fixed in jaw socket. Shabash. Very good. Because teeth are fixed in the jaw socket, therefore we are called as thecodon. Very good Aryan. Good boy. पायल आपका भी यही आंसर था बच्चा? हाँ मैडम. ए ऑप्शन ए. ओके पायल. अभी आप ये बताओ बेटा. ये वाला आंसर आप बताओ पायल. आप म्यूट हो गई हो. पायल आप म्यूट हो गई हो. यस पायल. टेल मी दिस आंसर बच्चा. ओके. Who knows the answer? Tell me. मैम ऑप्शन. मिस कहने से ऑप्शन बी. पक्का नहीं. मिस ऑप्शन बी 2 1 2 3. Option B. 2 1 2 3.